welcome to the episode number 3 of Janhit Mein Jari. In today's episode, we'll be discussing about how to identify the tensions. होता क्या है कि you actually encountered it as a topic and then we asked you to decode the topic in 3 simple ways. First, understand the keywords. That means you have to open up in which context and what is the meaning. अगर metaphor दिया गया है, so metaphor किस चीज़ के लिए यूज हो सकता है? जैसे कि a muddy water. So muddy water means what? A state of mind or what? So कोई भी चीज़ जो आपको ऐसे टॉपिक में दी गई है, उसका अगर कोई मेटाफर है तो कीवर्ड्स के हिसाब से हम उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाइंग कि कहाँ से ये टॉपिक जो है ये उभरा है. दैट इज द फंडामेंटल assumptions. That means कि if the topic is given to you, that topic will hold true for certain situation. In what situation the topic will hold true? ये जो concept है ये आज हम थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे with examples. Okay? Now, this is the fundamental assumptions where what you are going to do about it, it's like how the topic is arising. उसका genesis क्या है? The moment you understand the genesis of the topic, you are basically answering what is the fundamental assumptions. Okay? Then, the next step is identifying the tensions. What are the tensions? Tensions are basically when you try to apply that topic to your life, when you are giving the practical applications of that topic, and when you feel that, okay, if I have to make sure that I follow by what is being said in this topic, where I find it difficult to implement. That means every single statement or every single wisdom will apply to a certain condition and there are certain limitations of it. अगर आप उस limitations को identify कर रहे हो, that means आप tensions को basically देखना सीख रहे हो. कैसे tensions देखें, किस तरह से वो होना चाहिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस को और ज़्यादा आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे. होगा क्या कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर आप वो टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि टेंशंस आर बेसिकली टू इक्वली कंपीटिंग आर्ग्यूमेंट्स बट दे आर बोथ गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस. तो करना ये होता है कि अगर ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ये वैलिड दोनों जैसे कैसे हो सकती है एग्जैक्टली अपोजिट में, क्योंकि आप उसकी कंडीशंस चेंज कर रहे हो. बिकॉज मैंने जैसे कहा हर एक टॉपिक एक कंडीशन के लिए परफेक्ट जाएगा बट देयर वुड बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर वो टॉपिक अप्लाई नहीं हो पाएगा. यही तो आजकल हम लोग अभी तक के फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में ये सीख रहे हैं. आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि exactly how to feel the topic so that we'll understand कि okay, these tensions are existing in the statement, right? So before we understand how to proceed, I wanted to pose a one simple question for you. Okay? And that simple question is, do you really believe in God? Now, apply this statement to your life because this will connect to everyone and that is how we are going to learn. जब आप एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हो, when you feel that topic, that is when you understand how to identify the tensions. So this is a one single exercise which I wanted to conduct this with you. So be honest and then we'll proceed. There would be 2 categories over here. Either if you're watching this video, you would be the God believer or either you would be the atheist. Okay? अब देखिए, यही तो टेंशन है कि आपने एक जो सवाल है वो खड़ा किया कि are you believer of a God? There would be answer either yes or there would be answer either no. अब इसका जो भी justification होगा, now these are the 2 competing ideas जो कि opposite direction में जा रही है. What would be the argument which would be presented by those who believe in a God? आप ये कहोगे कि entire universe is set so perfectly for us to exist. राइट? अगर हमारे बॉडी में एक भी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होता तो हम शायद नहीं होते, या फिर ओजोन लेयर परफेक्टली अटैच उस हिसाब से नहीं बन पाता तो शायद सन की वजह से हम इतना हीट होता कि शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाते. राइट? सो द एवरी सिंगल थिंग इज सो प्रिसाइजली ब्लेस्ड इन आवर लाइफ एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन एंड दैट्स व्हाई गॉड एग्जिस्ट. बिकॉज इफ एवरीथिंग इज पुटिंग आउट इन सच अ फैशन कि which is such a workable conditions, that's why we believe yes, there is someone creator. That's the argument atheist would give. A equally competent argument would be given by the atheist people. Atheist people basically will try to give you the answer in 2 dimensions. First, they'll tell you that in the mathematical terms there is a probability and in the science term there is evolution. That's the answer they seek कि जहाँ पे ये सारी चीजें आई कहाँ से.
सो दे वुड से कि आप ये कहते हो कि द प्रोबेबिलिटी पूरे यूनिवर्स में इट्स वन ऑफ द ट्रिलियंथ पॉसिबिलिटी कि यस ये सारी कंडीशन यहाँ पे एक्ट हो सकती है, कि जहाँ पे ओके देयर वुड बी, जैसे कि हम यहाँ पे H2O कह रहे, हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ किसी और प्लैनेट में नाइट्रोजन हो, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट? हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि दैट यस इट एग्जिस्ट. एंड सेकंड आंसर द एथिस्ट पीपल वुड गिव that okay fine, if this is the situation then evolution is also a part. आप ये नहीं कह सकते कि that this is the perfect situation. हमने अपने आप को इवॉल्व किया है सन के टेम्परेचर को इस तरह से मैनेज करने के लिए, हमने अपने आप को इवॉल्व किया है इन्वायरमेंट के अराउंड अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए और अपने आप के सर्वाइवल के लिए. So these are a two equally competent arguments. Can you understand that what tension really means? I hope now you're able to feel the heat. यही आपको करना है. कोई भी टॉपिक आप जब देखते हो तो इक्वली अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स रखने के बाद आप इंटरेस्ट जनरेट कर पाते हो एग्जामिनर का आपके ऐसे कॉपी के ऊपर. जब एग्जामिनर ये पढ़ता है कि ओके दिस इज सो सच अ वंडरफुल थीसिस दैट इट इज गिविंग, सच अ वंडरफुल एंटीथीसिस दैट पीपल इज गिविंग, नाउ दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड हाउ टू गो अबाउट द सिंथेसिस. ये अभी सिंथेसिस में क्या बात करेंगे, राइट? तो जो लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि दीज आर द प्रोज, दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज इन फेवर ऑफ इट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज गोइंग अगेंस्ट ऑफ इट. नाउ योर आइडिया हैज टू बी, ये आए कहां से आर्ग्यूमेंट? सिंथेसिस तभी हो पाता है जब आप वो सेकंड जो हमारा है डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल असम्पशन, जहां पे आप वो टैप कर पाते हो, आप सारी की सारी चीजें रिजॉल्व कर पाते हो. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस 3 steps इज वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज दीज 3 steps एड डेप्थ इन योर ऐसे कॉपीज. तभी जाके आप रैंकर्स जो है वो 30-40 मार्क्स ज्यादा बढ़ा सकते हो क्योंकि आपने अभी वैल्यू ऐड कर दिया है आपके आर्ग्यूमेंट में. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, थीसिस समझ लिया, एंटीथेसिस समझ लिया, अब सिंथेसिस की तरफ जाना है. नाउ यू फील सो मच अनकंफर्टेबल टू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज आवर ह्यूमन माइंड इज डूइंग वन थिंग, वी लव टू टेक स्टैंड्स either of this extreme or either of that extreme. We are not habitual to understand to look beyond the topic. और ये आपके लिए तभी पॉसिबल होगा जब आप फंडामेंटल क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे. Now how to do the look at the beyond the topic? Every time you don't need to take a stand, or every time you don't need to point out someone that they are wrong or something like that. फंडामेंटल क्वेश्चन करो कि भाई ये ऐसे डिबेट कर क्यों रहे, ये गॉड है या नहीं है, ये डिबेट आया कहाँ से. सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि डिबेट आया कहाँ से, इसका मतलब आप एक सवाल कर रहे हो, व्हाट ट्रूली मैटर्स, हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट ट्रूली मैटर्स. सो द फर्स्ट आंसर कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, ये आर्ग्यूमेंट उभरा कहाँ से, दैट फंडामेंटल क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे ऐसे होता है कि आप सवाल करोगे कि अच्छा ये दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट एक ही चीज को, एक कॉमन पॉइंट है जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये है कि यार एग्जिस्टेंस इज जेन्युइनली अ मिरेकल. हमारा यहाँ पे होना ये सच में कोई जादू से कम नहीं है. हम अचानक कैसे आए? अब इसका जवाब जिनके पास नहीं है वो इनका जवाब ढूंढने के लिए 2 क्राइटेरियाज दे रहे हैं. जब साइंस इवॉल्व हुआ तो एथिस्ट वाला एक सेक्शन बोला कि ओके फाइन, दिस कुड बी अ प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी कुड बी द वन ऑफ द आंसर एंड इवोल्यूशन वुड बी द सेकंड ऑफ द आंसर. बट इफ यू डोंट हैव द आंसर, दैट इज वेयर यू फाइंड दैट गॉड इज द क्रिएटर. वॉट एवर इट इज, कोई यहाँ पे सही नहीं है, कोई यहाँ पे गलत नहीं है. जब आप ये देखना बंद कर देते हो कि ये सही वर्सेस गलत नहीं है, राइट, और तब आप फंडामेंटल्स पे आते हो कि ये शुरुआत यहाँ से हुई है कि यस वी आर हियर एंड बिकॉज ऑफ द मिरेकल एंड दैट्स व्हाई दिस 2 डोमेन्स आर कमिंग. सो दैट्स फाइन. तो अब करना क्या है? किसी को बुरा नहीं कहना है, कि ना किसी को अच्छा कहना है, ना ये कह सकते कि कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी गलत जा रहा है, क्योंकि नहीं है. तो हायर सिंथेसिस में तब आएंगे जब आप एक उसके साथ व्हाट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम के साथ एक और एस्पेक्ट ऐड कर देते हो, एंड दैट इज व्हाट ट्रूली मैटर्स. व्हाट ट्रूली मैटर्स दैट कि नो मैटर ओके इफ यू आर बिलीविंग इन द गॉड और इफ यू डोंट बिलीव इन द गॉड, व्हाट ट्रूली मैटर्स इज दैट यू एग्जिस्ट नाउ. सो इफ यू एग्जिस्ट, लेट मेक दैट लिविंग वर्थ इट. अगर आप गॉड पे भरोसा कर रहे हो तो भगवान खुश हो जाएंगे अगर आप अच्छा जियोगे. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप साइंस के लिए या फिर वो चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे कि ओके थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लाइफ. सो द हायर सिंथेसिस विल ऑलवेज वुड बी ओके इफ इट इज कमिंग फ्रॉम देयर, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट क्वेश्चन ऑफ अ मिरेकल लाइक हाउ वी आर एग्जिस्ट. नाउ यू आर सेइंग दैट ओके वेदर यू बिलीव इन दिस और दैट, you should be look upon a certain thing that yes, now if we are here, we don't know the answer where it's really coming from, but even if I'm a God believer, if I'm a atheist, I should be make sure that my life is worthy about it. That is how you produce
synthesis. Understanding what you have to do. So identifying tensions, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको वो टॉपिक को महसूस करना पड़ेगा. You have to feel the topic to your bone. And when you actually do that, ask 2 questions to it. Where it is coming from. Anything. Where it is coming from. When you start doing that, you get a very different perspective to look at the topic. And that is where you win. Because आपका जो सोचने का तरीका है वही यहाँ से शुरुआत हुआ है. अब जब ये सोचते हो कि अच्छा ये या टॉपिक यहाँ से शुरुआत हुई है तो इसके लिए अभी ये कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे ये सेट होगा, यहाँ पे नहीं सेट होगा. तो रियली व्हाट ट्रूली मैटर्स व्हेन यू गो फॉर दैट, यू आर प्रोड्यूसिंग अ वेरी डिफरेंट इनसाइट्स देन अदर कैंडिडेट्स, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू अ ब्राउनी पॉइंट्स इन योर रेसिपी बुक. सो कैन वी डू वन थिंग, हम एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द एप्लीकेशन पार्ट. सो द एप्लीकेशन इज your UPSC questions, right? So one of the topic that UPSC asked you is that there is no path to the happiness and happiness is the path. Now what you have to do is, सबसे पहले आप ये समझो कि ये सवाल उठा क्यों कि there is no path to the happiness and happiness is the path. ये सोचने का तरीका है अभी, okay? तो जब ये सोचोगे तब आपको उस सवाल के जवाब मिलेंगे. क्यों है ये कि कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस द पाथ? तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हम हमेशा खुशियाँ ढूंढते रहते हैं. वी वॉन्ट टू बी हैप्पी. एंड वाई सो? बिकॉज हम कभी खुश नहीं रह पाते. अब वो क्यों नहीं रह पाते, ये जो है ना, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने हैं अभी. ओके, सो द थिंग इज दैट हमारी ग्रीड ही इतना है, हमारा चीज़, हम तृष्णा ही इतनी भरी हुई है हमारे अंदर कि हमें कोई भी चीज़ मिल जाए तो हम उससे खुश नहीं रह पाते. आज मुझे एक पेन चाहिए, आजकल मुझे कार चाहिए, कार मिल जाए तो कुछ और चाहिए. सो एवरीथिंग यू वॉन्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी विद इट. Even if you have everything, tomorrow you'll find something else that you don't have it. So based on that, वो टेंशन था, वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था. इस तरह से सोचना है बच्चे. Now, when you understand, अगर ये क्वेश्चन था कि हाँ, हम नहीं खुश रह पाते बिकॉज हमारे में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, तृष्णा है, तो आप भाई अगर खुशी को ढूंढ रहे हो तो खुशी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी. इट इज़ समथिंग, ये जर्नी है, एक पाथ है जो आपको समझना चाहिए. हैप्पीनेस इज द पाथ. सो एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, सो वट एवर स्टेज you are in your life, you have to understand, just be happy with that moment because that's a present from the life. ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए, उस चीज के सवाल, उस सवाल के लिए जो आपको बता रहा है कि मैं खुश कैसे रहूं, तो उसका जवाब देने के लिए ये कोड बनाया गया है. समझ में आया आप किस तरह से सोच रहे हो? तो जैसे ही आपने ये सोचा कि हाँ, ये तो सवाल का जवाब हो गया, बट मुझे जब मैं ये कोड को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि यस, हैप्पीनेस, देयर इज नो पार्ट टू द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द पाथ, मैं चलूँ कैसे इस हैप्पीनेस के पाथ पे? अब ये टेंशन आ गया, ये संकट आ गया आपको कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड. तो ये जो टेंशन है ना, तो आप वो महसूस कर रहे हो. तो हमेशा टेंशन तब आपको पता चलेंगे जब आप उस कोड को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हो. ये जब सोचोगे तब क्या संकट आपको महसूस हो रहा है, व्हाट आर द की टेंशंस दैट नाउ यू आर फेसिंग. वही कि डिजायर करना बुरी बात है क्या? अगर मुझे डिजायर नहीं करना है तो मुझे कंटेंट ही रहना है हर चीज में, तो फिर मजा ही क्या? दैट इज द टेंशन. You can actually figure it out from this. So whether I have to, so it's okay na, if I'm really earning at a 10,000, why do I have to think about it, चलो सही चल रहा है, why do I really aspire to do something bigger, better और उससे भी अच्छा हो? तो ये जो टेंशन है ना, ये आपको यहाँ पे दिमाग में आ जाती है और उसी के हिसाब से आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज व्हाट बच्चे टास्क फॉर्मेट गिव्स डेप्थ इन योर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो ये तो पहला टेंशन हमने समझ लिया. यहाँ पे क्या है. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द अनदर टेंशंस. कि अनदर टेंशन ये है कि जैसे कि पहला तो ये हमने कह दिया कि ओके, वेदर वी हैव टू बी कंटेंट और वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर व्हाट वी वांट. सेकंड ये है, इट्स अबाउट अराइवल वर्सेस प्रेजेंस. हम हमेशा ये सोचते कि मुझे अगर ये मिल जाएगा तब जाके मैं खुश रहूंगा, वेयर एज वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन है कि हैप्पीनेस, वो कह रहा है कि इट्स देयर इज नो पाथ टू द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. मतलब जो है मुझे उसमें खुशी मनानी होगी, मुझे उसमें कंटेंट में फील करना होगा, मुझे उसको समझना होगा. बट बात यह है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं रह पाते. वी ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर एंड वी सी ओके, इफ आई गेट सो एंड सो थिंग, then and then only I can be happy, otherwise I am not.
सो ये भी अगेन एक फंडामेंटल टेंशन है कि ओके, हाउ टू गो अबाउट इट देन, how to start living in the present moment and what to do about it. These are the tensions. Third tension is the earning versus accepting. Now the thing is ki okay, whether I should accept my reality and whether I should, it's about ki okay, the third. So the third tension is earning versus accepting. So we hold happiness must be earned through the success. तो हैप्पीनेस को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया पे डाल देते हैं, that will always gives us a misery. Whatever the externality or the materialistic thing, अगर हम happiness उस external source को पकड़ के चल रहे हैं, तो definitely that will give us a misery and not a happiness. So what is the thing? So happiness is something which is a psychological and accepting the fact. The moment you start accepting life what it is, you start blooming in your life. So these are the different tensions. You feel the heat when you understand the topic. And this is what you have to do in order to generate or identify the tensions. Okay? Now that we have spoke so much, हमने आपके लिए एक argument रखा. Okay, this is how you have to go about it. जैसे कि God. So this is how we have to go about it. What we have done is, we have understood कि yes, there would be an equal and opposite views. और वो इक्वल एंड अपोजिट व्यूज आप जितनी खूबसूरती से पेश कर पाते हो और उससे भी बढ़िया खूबसूरती से जब आप उसका सिंथेसिस दे पाते हो, देन एंड देन ओनली योर पेपर विल गिव यू अ डेप्थ और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे. Similarly, we have a lot of topics that we can discuss. Let's discuss one more topic so that you'll get the understanding, right? The second topic is that life is a journey and not a destination. Now, क्यों ऐसे कहा गया है? नाउ दीज आर द रिकरिंग थीम्स. यही आपको बात हम लोग बताने की कोशिश करते हैं. रोहित सर ने आपके साथ बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल है. व्हाट वी आर एक्चुअली वांट आवर स्टूडेंट्स टू नो कि यू हैव टू डिकोड द PYQs इन टर्म्स कि कौन से थीम्स आ रहे हैं, कौन से थीम्स नहीं आ रहे. सो द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग इज कि प्रोग्रेस करना है, गोल चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग अबाउट इट. So these are the tensions. We have the PDF available for you. You can check this in the description box as well, कि जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा PDF का. So क्या करना है, हमें एक एक टॉपिक को लेके उसको डिकोड करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि हम उसके टेंशन्स फील कर पा रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके तरह से आर्गुमेंट बना पा रहे हैं. अब फिर से ये टॉपिक आया है दैट लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. अब ये बताया क्यों गया है? तो यहाँ पे बात ये आती है कि यस, लाइफ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सो it gives you a different sort of experiences. It gives you highs, it gives you lows, it gives you a success, it gives you a failure, it gives you a happiness, it gives you a sorrow. So that is how we have to go through in a life, right? So life में जो भी चीज़ें आती है, just like we go on a journey. So there would be roads which would be not good. There would be roads which are very cynic about it. So we have to start whatever coming into our life, because life is so unpredictable and so uncertain. So you have to live in that uncertainty. And when you have to live in that uncertainty, you have no idea how to look at the life. तो ये जो क्वेश्चन था ना कि how should I look at my life? So that is what the quote is trying to answer, that life is a journey and not a destination. तो आप कभी भी किसी चीज़ को हासिल कर लेते हो, then you feel like कि okay, I'm not, happy about it. Same theme है, देखिए ऊपर वाला थीम भी सेम था, this theme is also same, and that's why we want you to understand the inherent tensions or inherent or recurring things that are coming time and again. तो वो आप एक बार समझ जाओगे तो you can produce a good content of your own, जहाँ पे आप एनेक्डोट अच्छे से लिख पाओगे, जहाँ पे आपको पता है कि इस तरह से मुझे इंट्रोडक्शन करना है, जो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि हाउ टू लूप बैक टू द कंक्लूजन. तो जिस तरह से आप उसके टेंशंस पहले समझ जाते हो, उसके बाद आपको आपका एक कंटेंट मिल जाता है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, क्योंकि दिस इज द आर्गुमेंट आई हैव टू प्रेजेंट, हाउ कैन आई प्रेजेंट द इंट्रोडक्शन एंड हाउ कैन आई प्रेजेंट द कंक्लूजन. दैट इज टू लूप बैक टू इट. यही हमने सेकंड एपिसोड में सीखा था. ओके, एंड इफ यू स्टिल फील दैट यू आर स्ट्रगलिंग to understand how to go about it, and you need some mentor or someone to sit with and talk about it, about these tensions, about the discussion, you can join this Match Receive program, which has been started, though workshops already we have done. But still, if you feel ki yes, you need to talk to someone, please reach out to us. Or else, if you cannot do that, make sure you comment to us. If you have certain queries, reach out and we'll try to resolve that thing, right? So we understood the first thing कि where it is coming from. Now we have to understand कि हाँ, इसमें क्या क्या टेंशन है, और इसके जो टेंशन है ना वो ये है process versus outcome. So let's understand the tensions which are here. So first tension is process versus outcome.
वाई वी एक्चुअली गिव इम्पोर्टेंस टू डेस्टिनेशन. ऐसे क्यों करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन के ऊपर? बिकॉज हमारे लिए हमारी पूरी वर्थ, हमने क्या अचीव किया है, यही तो सोसाइटी से समझ रहे हैं. तो जब हमेशा हम लोग ये अचीव करना, ये अचीव करना, ये अचीव करना है, तभी जाके हम सक्सेसफुल है, तभी जाके हमारी ये चेक बॉक्स टिक हुआ है, तभी जाके हम लोग फिट हो रहे हैं सोशल नॉर्म्स के ऊपर. ये डेस्टिनेशन हुआ तभी तो हमारी लाइफ की वर्थ है, ये हमें बताया गया है. तो यही तो टेंशन है कि अरे जर्नी को कैसे देखे. वो टेंशन तो है ही कि डेस्टिनेशन अगर नहीं होगा तो फिर किसके लिए हम लोग जी रहे. कुछ टारगेट नहीं है तो व्हाई आर वी हियर. तो राइट. सो बिकॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ यू हैव टू सेट सर्टेन गोल्स, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ. तो वो जो टेंशन है वो है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वाज अ डिस्कवरी. Okay. Second is becoming versus arriving. So the person is always changing and growing and has never truly finished. Right? तो ये जो टेंशन होता है ना हमेशा कि हाँ मैं प्रोसेस में तो हूँ, बट आई एम बिकमिंग, बट एम आई अराइविंग. तो डेस्टिनेशन अगर कहाँ पे मुझे रुकना है मुझे नहीं पता, कौन सी चीज़ कहाँ तक करनी है. सो वो हम लोग समझते हैं ना कि ओके तो चीज़ों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है तब जाके वो मुझे उसका वर्थ समझ में आए. दीज आर द लिटिल, ये बहुत फिलोसॉफिकल, आप इसमें डेप्थ ऐड कर सकते हो. हाउ यू कैन मेक श्योर कि ये जो टॉपिक है, ये जर्नी और डेस्टिनेशन, अभी ये जो कीवर्ड्स है जो हमारा पहला था, हाउ यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग देम ऑन द पेपर. सो दीज आर द टेंशन दैट यू फील. डायरेक्शन वर्सेस ओपननेस. अगर आपके पास एक डेस्टिनेशन होगा तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे. अगर आप कुछ भी नहीं है तो अगेन द टॉपिक जो इसी थीम के साथ रिकरेंट करता है, नॉट ऑल हु वैंडर्स आर लॉस्ट. सो 3 क्वेश्चंस आए हैं सेम कि व्हाट शुड बी योर थिंग टू गो अबाउट और गोल क्या होना चाहिए. राइट. तो किसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए हैं एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद इट. ओके. सो दीज आर द 3 टेंशंस. व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्लीज डाउनलोड द PDF that would be given it to you. आप एक बार उसको समझो, उसके टेंशंस को समझो, उसके ऊपर फिर आप डायमेंशंस ओपन करने की कोशिश करो. करना क्या है, वही फंडामेंटल्स कि ये चीज़, पहला सवाल क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये पूछो, ये कीवर्ड्स है, फाइन, दैट दीज आर द कीवर्ड्स. ये सवाल बना क्यों, ये स्टेटमेंट, ये ज्ञान आया कहाँ से, किस चीज़ को आंसर करने के लिए ज्ञान दिया गया है, तो वो समझोगे. उसके बाद जब अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, आपको संकट मिलेंगे, आपको टेंशंस मिलेंगी, एंड दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग, गोइंग इनटू दैट डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग जोन. जिस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तब तक हम लोग आपके पास एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसका फॉर्मेट होगा कि हाउ टू देन अप्लाई द थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. बिकॉज सबसे पहले जब आप ये नहीं सीख पाओगे, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नहीं लेके आ पाओगे, आपको किस तरह का खाना बनाना है, उसी के बाद ही तो आप अपना कुकिंग शुरू करोगे, उसी के बाद भी तो आप करोगे पेपर लिखना. इट्स सेम एज दैट. ब्रेनस्टॉर्मिंग इट्स लाइक अ ब्रिंगिंग आउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स. जब वो आ जाएंगे, then we'll understand कि okay, how, what thesis write about it, what antithesis we can go about it, and उसका synthesis कैसे निकाल के आए. So please follow this method. Please go through this idea. सवाल कीजिए where it is coming from and what truly matters. This is how you can get depth into your essay papers. Thank you so much for watching this video. If you're really liking our initiative, please do consider subscribing to our channel. Please hit the like and do comment and share a lot. See you in the next episode.